Question number 9. Jake, you should assume that today's date is 1st of January 2026. You are an ACCA student working for a firm of accountants. Your manager has asked you to prepare a memorandum concerning the personal affairs of Jake, a new client of your firm. ठीक है. In addition to some ethical considerations which have been raised, a manager advice is required. ठीक है. On following matters, अब वो matters है कुछ नीचे दिए हुए हैं. अच्छा, दो ही है खाली एग्जिबिट्स. ठीक है. पहला, work to be carried out to tax senior from tax manager Jake. ठीक है. Prepare a memorandum for the client file which addresses the following issues. Becoming tax advisors to Jake, I have not identified any threats to compliance with the fundamental principles of professional ethics which would arise as a result of becoming tax advisors to Jake. Explain why it is important that we cannot, sorry, that we contact Jake's previous tax advisors. State any other actions we should take before we agree to becoming Jake's tax advisors. ये बहुत ही जेनेरिक का आंसर है क्योंकि एग्जिबिट में कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है. ठीक है. बता भाई. एमी, क्यों टैक्स एडवाइजर्स को कांटेक्ट करना चाहिए? वही पिछले अभी उसके पिछले टैक्स एडवाइजर को अपने को कांटेक्ट करके पूछना पड़ेगा कि उसका कुछ आउटस्टैंडिंग ऐसे ये है क्या, क्या बोलते हैं। क्लेम्स. हाँ, आउटस्टैंडिंग कुछ क्लेम्स है क्या। देन ऐसे कुछ सेक्टर्स है क्या जिस पे हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज उसमें चांसेस है कि घपली हो सकता है, घपली नहीं क्या बोल सकते हैं, ऐसे कोई। प्रॉब्लम हो सकता है. आउटस्टैंडिंग क्लेम्स बाकी है क्या, ताकि और वो क्यों अपना चेंज कर रहा है. व्हाट इज द रीजन व्हाई इज चेंजिंग हिज टैक्स हाँ, व्हाट इज द एडवाइजर्स. रीजन इज इज देयर is वही। there any other reason because of which our decision to become Jake's tax advisors would change? ऐसा मतलब is there any hint of fraudulent transactions being conducted by him वगैरह. हाँ। अभी state the other actions we should take before we agree to becoming Jake's tax advisors. वही उसका इंडिविजुअल का सब लेना पड़ेगा, एड्रेस एंड वो सब कंपनी। Hmm. Proof of identity. Uh, proof of identity and हाँ मतलब एड्रेस तो है और एक कुछ तो चाहिए रहेगा उसके लिए. इतना ही है. देखते हैं. है। ओह नाइस, एग्जैक्ट आया था. हम्म। FCSPD फॉलो किया ये लोग ने. फाइल्स में लोग फॉर फाइल्स. ठीक है. अभी ये देख, contacting Jake's previous advisors. Reasons for contacting Jake's previous tax advisors: to discover any matters which may influence our decision to take on work for Jake. For example, Jake's attitude to disclose information to HMRC, and the reason Jake हम्म। has decided to change his tax advisors. To obtain information necessary to ensure that Jake's affairs are transferred without any administrative errors. मैंने बोला है to obtain information necessary to obtain Jake's affairs as transferred without. ठीक है. मतलब कोई आउटस्टैंडिंग क्लेम्स थी, उन्होंने वही चीज को नीचे एग्जाम्पल में लिखा है. डिटेल्स ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग इलेक्शंस एंड क्लेम्स इफ जेक वेयर टू प्रिवेंट अस फ्रॉम डिस्कसिंग हिज. अरे हाँ, ये वाला पॉइंट नहीं लिखा कि इफ जेक इज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम discussing his affairs with his previous tax advisors. The ACCA Code of Ethics and Conduct states that we should not accept him as a client. सीधा बोला हुआ है कि भाई अगर तू कुछ छुपाने का ट्राई कर रहा है, तू अगर हमें तुमसे बात करने का मौका नहीं दे रहा है, तो तू हमारा तो वी विल नॉट एक्सेप्ट यू एज अवर क्लाइंट. अदर एक्शंस टू टेक: वी शुड ऑब्टेन एविडेंस ऑफ जेक्स आइडेंटिटी एंड एड्रेस. ये अपने बराबर बोला. वी शुड कैरी आउट प्रोसीजर. अरे हाँ, वी शुड कैरी आउट अवर ओन प्रोसीजर्स टू एश्योर ourselves that Jake is not involved in any form of money laundering. हमें हमारे कंपनी के जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है वो फॉलो करने चाहिए. ठीक है. चलो.
इस पे आते हैं अभी, 8 मार्क वाले पे। New unincorporated business. When carrying out tasks 1 and 2 below, you should ignore the alternative plan for the use of the yak building and simply assume that whole of the yak building will be used for the purposes of carrying out Jake's unincorporated business. ठीक है, हमें ये assume करके जाना है कि पूरा का पूरा yak building सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए यूज हो रहा था. You should also ignore value added tax. ठीक है. पहला वाला, insurance proceeds available for investment in business on the assumption that construction of yak building will be completed and paid for on 1st of February 2026. Explain the relief available to Jake in respect of the chargeable gain resulting from the destruction of wall building. अच्छा, destruction ही बोल दिया वो लोग ने सीधा. हम्म, एक सेकंड ना. किधर जा रहा है, खत्म हो गया बस। क्या? अरे सॉरी, ऊपर आ गया. सॉरी. ये वाला, I will begin trading. Sorry, I will begin trading on 1st of April 2026. I will also register for the purposes of value added tax from the date. I'll prepare accounts to 31st of March each year using the accrual basis. As you know, I owed wall building, a commercial building that I rented out to business tenant for many years until it was destroyed by fire on 1st of August 2025. I understand from our discussions and the insurance proceeds of 3,80,000 resulted in a chargeable gain of 1,30,000. This will be my only chargeable gain in the tax year 2025-26. Okay, I have now decided to use some of the insurance proceeds to have a new building, yak building, constructed on the site where wall building was situated. The construction of yak building will cost 3,35,000 plus 20% VAT. The cost of 3,35,000 includes 75,000 in respect of okay, electrical systems, heating systems and other integral features. ओके, तो इन सब के ऊपर तो अब अपने को स्पेशल रेट पूल में एआईए मिलेगा. ये ठीक है. आई प्लान टू यूज द होल ऑफ द याक बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट माई अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस फ्रॉम 1st of April 26. नाइस. ये क्या expenditure? I will incur the following expenditure in relation to the new business. On 1st of February 26, I will complete the purchase of the newly constructed yak building. ठीक है. Any post-tax insurance proceeds remaining after the construction of yak building will be reinvested. अच्छा ठीक है, तो बाकी सब चीजों को मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ? Between now and 31st of March 26, I will travel extensively throughout the UK in order to visit potential customers and persuade them to place advance orders for my products. अच्छा ठीक है, तो ये तो अलाउेबल डिडक्शन नहीं है क्योंकि ये पोटेंशियल कस्टमर्स वगैरह वगैरह है और उसके लिए अलाउड नहीं रहता. यूके कस्टमर्स के लिए इतना सारा खर्चा पोटेंशियली अलाउड नहीं है क्योंकि अब तक हमारे कस्टमर्स ही नहीं बने हैं. ऐसा भी एक है. फिर आता है ऑन 1st of April 2026 I will purchase a new car on which I will use 65% for business purposes and 35% for private purposes. This is not okay. This will not be a car with zero rated emission. अरे भाई, तो मतलब ये 18% के मेन पूल में जाएगा. क्या है हमको? बट 18, नहीं एक सेकेंड, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस में कार पे लेना रहता है क्या कैपिटल अलाउंस? नहीं, एआई वगैरह नहीं मिलता लेकिन तू उसको अपने पूल में डालता है और उसके ऊपर तू डब्ल्यूडीए कैलकुलेट करते रहता है. ऐसा है. ओके, ठीक है ठीक है। ये पूछा क्या है? The construction of the Yak building will be completed and paid for cost of delivery on cost of the district and the relief available in shape in respect of the chargeable fund resulting from the destruction of the wall. एक ऑल्टरनेटिव प्लान के बारे में तो ये लोग ने नीचे दिया हुआ है. ठीक है.
Explain when, if at all, Jake will be able to obtain tax deduction for the cost he is likely to have incurred in respect of visiting potential. तो वो potential customers के लिए ये है, और वो भी purchase of नहीं the car का चाहिए। यहाँ पे बोलना है। तो यहाँ पे क्या बोलना है? Insurance proceeds available for investment in the business on the assumption that the construction of yard building will be completed and paid on 1st of February 26. Explain the relief available to Jake in respect of the chargeable gain resulting from the destruction of wall building. Okay. On the assumption that Jake claims the relief you have identified in one and will have total income in the tax rate 25-26 of 30,000. Calculate the amount of post-tax insurance proceeds. अच्छा ठीक है, मतलब टैक्स कैलकुलेट करना है, which will have which will be available after the construction of yak building for the, ठीक है। तो बेसिकली अब वो अपने को सबसे पहले तो मतलब वो रिलीफ के बारे में बताना है ना। हाँ, इसने ये पूरा का पूरा एक डिस्ट्रॉयड है। हाँ मतलब ये अपना रोल ओवर रिलीफ की तरह ही है एक तरीके से, बिकॉज तू अभी इस चीज को बिजनेस यस। में यूज करने वाला है। लेकिन एक मिनट, तूने इसको हाँ पहले कैसे किया था? तूने इसको पहले ओन किया था फॉर मेनी ईयर, लेकिन तूने इस चीज को रेंट पे दिया था। तो तेरा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए था पहले तो। हाँ, पहले का इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए था। उसके बाद वो गेन को तूने रोल ओवर करके बिजनेस पर्पस के लिए किया है। हम्म, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल रहा था, देखा कि कौन सा ये नाइन्थ वाला, जेक। ए का फर्स्ट पार्टी कर रहे हैं ना हम लोग? नहीं, बी का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो है ना। देख जरा क्वेश्चन में। बराबर, पी का फर्स्ट। तो अभी देखो इंश्योरेंस प्रोसीड्स कितने मिल रहे हैं, 3,80,000 के। गेन तेरे को हो रहा है 1,30,000 का। However, not all the proceeds are being reinvested for the business purpose. मैं क्या बोलता हूँ, रोल ओवर रिलीफ जो है वो अगर तू नॉन बिजनेस एसेट को भी अगर तू बिजनेस एसेट में डालता है तो भी मिलता है ना। हाँ शायद। हाँ रे, ये जरा क्वालिफाई होगा कि नहीं रोल ओवर रिलीफ के लिए। बट अगर वही ये मैं बोल रहा रोल हूँ। ओवर के लिए भी क्वालिफाई हुआ तो वो नॉर्मल रिलीफ, नॉर्मल जो डिफर करते हैं वो तो हो ही जाएगा ना। हाँ हाँ, मतलब अपना देख, अपने को क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट तो अपने को पूरा पता है, ठीक है। हम्म। लेकिन द थिंग इज कि अपने को देखना है वो खाली नाम वहां पे अगर लिखना पड़ा तो क्या लिखना है उसमें, वो देख रहा था अभी। द अमाउंट री इन्वेस्टेड वॉज 3,35,000। thus the proceeds of 3,80 minus 3,35 were not reinvested, ठीक है। अभी इसको तूने रीवर वेर नॉट reinvested and thus these will be chargeable immediately, while the gains of this minus for 45,000 85,000 will be deferred, ठीक है। तो अभी चल चल चल, अभी दे चार्जेबल गेन्स आते हैं। अरे अरे थे बी डेफर्ड 45,000 के, ठीक है। फिर अपन रोल ओवर रिलीफ के लिए वो बता देंगे कि पीरियड क्या है, तो 1 ईयर बिफोर एंड 3 ईयर्स लेटर, ये तेरा पीरियड रहता है। एंड यू हैव गॉट द इंश्योरेंस प्रोसीड्स ऑन व्हाट डेट, ऑन विच एवर डेट यू गॉट इट, बट बेसिकली यू हैव डिसाइडेड कि तू अभी इस चीज को यूज कर रहा है। तो 25-26 है,
and I plan to use the whole of the yak building for carrying out my unincorporated business from 1st of April 26 only. तो बेसिकली तू ये मतलब क्या बोलते हैं, बिजनेस के लिए विद इन 3 इयर्स ही तू उन सारे पैसों को डाल रहा है, ठीक है। अभी ये जो है तेरा 75,000 वगैरह, इसके ऊपर तेरे को AI वगैरह सब कुछ मिलेगा, बट हाउ इज दैट रेलेवेंट भाई? बस वही सोच रहा हूँ। बेसिकली अपने को सेकंड क्वेश्चन वाले में पूछा है ना वो बिल्डिंग का। The reason that they claim the relief you have identified in one and will have to have the total income of and when it is 30,000 calculate the amount of हाँ, post-tax insurance proceeds ये देख will be मैंने तो बोला available ना, after the construction of rollover the relief building. allows the gain arising on the disposal of a qualifying business asset to be Um, rolled over when services are invested in the replacement of a qualifying business asset। well, business asset to business asset, तो ये रोल ओवर रिलीफ नहीं है। दिस इज क्या बोलते हैं, अपना अपना नॉर्मल डेफरल है ये। दिस इज नॉट अ रोल ओवर रिलीफ बेसिकली, लेकिन नॉर्मल डेफरल के भी पीरियड तो सेम ही है कि 3 इयर्स और 1 ईयर के इसमें अंदर तेरे को होना चाहिए, री इन्वेस्ट तेरे को करना चाहिए, ठीक है। भी तेरे को इस गेम्स के ऊपर टैक्स लगाना है। फिर तू सीजीटी कौन से रेट पे लगाएगा? तूने इधर बिजनेस यूज के था ही नहीं, तो बीए तो बैडर तो मिलेगा ही नहीं, है ना। लेकिन एक मिनट, तेरे को इसके ऊपर तू क्या कर सकता है, लेस वी कैन डू AEA विच इज 3,000 का। फिर अपने को आता है टैक्सेबल गेन्स। टैक्सेबल गेन्स अपने को मिलते हैं दिस माइनस दिस, नो AI इज, नो BADR इज अवेलेबल, ठीक है। एंड बट लेकिन फिर CGT में मैं हायर रेट टैक्स करूँ कि क्या हूँ फिर मैं? बिजनेस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 26, तो मतलब 26-27 में बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो 25-26 में मुझे लगता है मैं नॉर्मली मतलब बंदा हूँ, तो नॉर्मली बंदा हूँ तो मुझे लगता है 37,700 एंड दिस माइनस दिस, इसके ऊपर ऐसा होगा 10%, 20%। आई मीन तो ये BADR के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा है ना, मुझे तो लगता है। नहीं बीपीएल के लिए तो नहीं करेगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था। वही, अभी इन्होंने यहाँ पे बोला है कि मेरा बिजनेस 25-26 से चालू हो रहा है, बराबर है। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये हायर, कि इसके पास कोई इनकम नहीं है बिजनेस का, ऐसा एक्चुअली होना चाहिए क्योंकि ये रेंट आउट किया गया था। बट अभी ये सब में कुछ बोला नहीं है, तो अगर ये नॉर्मल ट्रेडर रहेगा ना, तो फिर इसको मतलब इसका कोई सालाना कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो फिर इसका CGT 4630 आता है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट के लिए बोल रहा है ना तू? हाँ अभी तक हाँ, याक बिल्डिंग का कुछ भी कैलकुलेशन नहीं नहीं नहीं, ओ नहीं, ये देख बोला है ऑन द assumption that J claims the relief you है। have हाँ identified and will थर्टी have total थाउजेंड income of 30,000, ये बोला है। ओ माय बैड माय बैड माय बैड। तो टोटल इनकम अगर उसका 30,000 का है, इसमें से मैं लेस PA करूंगा, तो होता है 12,570, दिस माइनस दिस, सो नाउ कैपिटल अलाउंसेस भी माइनस होंगे ना? द बैंड, कौन से कैपिटल अलाउंस की बात कर रहे हैं मेरे भाई? कैपिटल अलाउंसेस कहाँ से माइनस होंगे, वो और अगले याक साल से आने वाले हैं बिल्डिंग। ना। अच्छा, याक बिल्डिंग का तू बोल रहा अच्छा है? हाँ बराबर वो अगले साल। बट नहीं वो अगले साल से होगा ना क्योंकि नहीं नहीं, ये देख ऑन उसका February स्टार्ट तब 26 किया है। आई विल कंप्लीट द परचेज ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड यार्ड बिल्डिंग। 1 February 26 से स्टार्ट किया है, तो लास्ट के 2 महीने तो आते हैं। हाँ तो वो इस पे आएगा ना फिर तो क्या है वो बात तो बराबर बोल रहा है, एक्सपेंडिचर्स आना तो चाहिए, आना तो चाहिए। इलेक्ट्रिकल सिस्टम और उससे।
बट ये ऐसा भी हो भाई सकता अगर है क्या, वैसा आई करेंगे प्लान तो टू फिर तो यूज द पूरा ही होल निकल याक बिल्डिंग जाएगा। फॉर द पर्पस। तो पूरा ही निकल जाएगा हाँ अगर ऐसे वही, ऐसे क्योंकि करते जाएंगे मैं तो। पूछ रहा था हम्म। मैं पूछ रहा था कि 1 अप्रैल 2026 से वो बिल्डिंग यूज कर रहा है, तो अपन तब से कंसिडर करेंगे ना। तो अभी तो नहीं आएगा शायद। वो भले उसने एक्सपेंडिचर कंप्लीट कर दिया परचेस का। नहीं उसने, देख कैसा किया है उसने, बिल्डिंग अपना चालू किया है 1 February 26 से यूज करना। उसी साल उस नहीं टाइम से ही नहीं कंडक्ट करेंगे। क्या हो गया? नहीं, उसने नहीं उसने ओके। यहाँ पे बोला कि एक्सपेंडिचर करके हो गया, ऊपर स्क्रॉल कर। ऊपर ऊपर यहाँ पे बोला लास्ट टाइम में, आई प्लान टू यूज द होल याक बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन मैन ऑन 1 April 2026। ओ ओके तो ओके नहीं ओके, सॉरी आएगा। सॉरी सॉरी। सॉरी सॉरी, हाँ। राइट राइट राइट। तो मेरे को आ रहा है पर ये फिलहाल इतना सिक्स ही थ्री होगा शायद सेवन थ्री कैलकुलेशन का। मेरे को फिलहाल हम्म। आ रहा है 6373। 6373 आएगा। आई फील। फिर उसमें से तो फिर तो पीए माइनस करेगा ना 12570, अगर उन्होंने तेरे को टोटल इनकम दिया है तो। उन्होंने तेरे को टैक्सेबल इनकम नहीं दिया है, टोटल इनकम दिया है, हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ, है ना। फिर 6373 आना चाहिए। यस बराबर। एंड पोस्ट टैक्स प्रोसीड्स बोला है तो पोस्ट टैक्स प्रोसीड्स जो तेरे को मिलेंगे, तो प्रोसीड्स तो मिले हैं 3 इतने, माइनस इंश्योरेंस प्रोसीड्स इतने, माइनस सीजीटी, तो 3,73,627 आना चाहिए भाई। मैं अभी चेक कर रहा हूँ। ये देखा। Early will be available in respect of the gain of because you use part of the initial proceeds require replacement within 12 months of the receipt, ठीक है। सो बेसिकली नॉर्मल डेफरल के टाइम पे 12 मंथ्स ऑफ द रिसीट पे हमको इन्वेस्ट करना रहता है, ठीक है। This, as a result of this relief, gain charge now is reduced to amount of insurance proceeds not spent. ठीक है। The balance of the gain will be deducted from the capital gains tax (CGT) base cost of the new building, such that it will be deferred until the new building is disposed of. Perfect. ये उन्होंने दिया है। ये देख, 3,73,627, 3,73,627, but then they have did less cost of the new building. Okay, एक सेकंड, हाँ। ये उन्होंने पूछा क्या था? पोस्ट टैक्स इंश्योरेंस प्रोसीड्स which will be available after construction of the yak building for, अच्छा ओके। मतलब और तुम अगर इन्वेस्ट करने जाओगे तो कितना कंस्ट्रक्शन इन्वेस्ट अभी। कर पाओगे? ठीक है ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अभी 3,35,000 कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन को इंक्लूड करके किया था, बट ठीक है अगर उसको माइनस करके करेंगे तो फिर हमारे पास 38,627 बचता है फॉर अदर इन्वेस्टमेंट शिट, ठीक है। नहीं आई थिंक इतना तो चलता है भाई अभी। ये अगर अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते तो भी अपन कैलकुलेट कर ही लेते, आई फील, हम्म। उस टाइम पे। चल अभी बी के सेकंड पे जाते हैं। Tax deduction in respect of the expenditure to be incurred. Explain when, if at all, Jake will be able to obtain tax deduction for the cost he is likely to have incurred in respect of visiting potential customers. ठीक है। तो मेरा तो यही आंसर है कि वो यूके के कस्टमर्स है। एंड कस्टमर्स के जो मतलब वो यूके के होते हैं उनके ऊपर एंटरटेनमेंट भी अलाउड नहीं है, एंड जो पोटेंशियल होते हैं उनको भी मिलने जाने का खर्चा इज नॉट टैक्स अलाउेबल डिडक्शन। ठीक है। तू बता। अपने को तो पूछे कि एक्सप्लेन व्हेन इफ एट ऑल बोला है ना। तो जब वो पोटेंशियल कस्टमर्स से जब अपने एक्चुअल कस्टमर्स हो जाएंगे, देन वी कैन क्लेम द लॉस, क्लेम द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह ना। हाँ कि ट्रैवलिंग मतलब एक्सपेंसेस उनके उस टाइम पे लिए क्लेम कर सकते हैं, यस यस। हाँ, मतलब मैं पूछ रहा हूँ जो पुराने अपन ने किए थे, जब वो पोटेंशियल थे, अब तक अपने कस्टमर्स नहीं थे, वो भी अपन हम्म। वापस ले नहीं सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। नहीं ले सकते, वो ठीक नहीं है। ले सकते। ठीक है। ठीक है ठीक है। फिर आता है
याक बिल्डिंग के जो जो अपन ने खर्चा किया है उसके ऊपर हम लोग हम्म। क्या क्या माइनस कर सकते हैं, वो लोग ने पूछा है। एक्सप्लेन द टैक्स डिडक्शन विच विल बी अवेलेबल इन जेक्स फर्स्ट ट्रेडिंग पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2027। तो याक बिल्डिंग के ऊपर हमने क्या क्या खर्चा जैसे किया है। देखो एक्सपेंडिचर। हम्म, हम्म। I will complete the purchase of the newly constructed yard building. नीचे नीचे। नहीं ये ही है ना। ये शायद रहेगा एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड इन रिलेशन टू द न्यू बिजनेस। पढ़ ले चाहिए तो एक बार। Any post-tax insurance proceeds remaining after construction of the yard building will be invested in my new business as follows. तो मैं बोल रहा था कि जो अपन याक बिल्डिंग के ऊपर खर्चा कर रहे हैं ना कॉस्ट का, वो उसके अंदर ये आएगा सेवेंटी हाँ फाइव थाउजेंड का ए आई हाँ ए हाँ। एंड एस बी ए जो आएगा, इसमें से यस। वैल्यू माइनस करेंगे तो आएगा आई थिंक 2,60,000 आना चाहिए। 2,60,000 के ऊपर 3% यस एंड उसके ऊपर 3%। थ्री, हाँ एंड 12/12 मतलब पूरा साल के लिए, तो जो भी आंसर होगा वो आएगा। फिर आता है परचेज ऑफ न्यू कार, इसके ऊपर। परचेस ऑफ न्यू कार पे मेरे को वो एआई वगैरह तो नहीं मिलेगा उतना पता है। और जितना बिजनेस पार्ट है उतने का ही कैपिटल अलाउंसेस मिलेगा ना। परफेक्ट बाकी परफेक्ट प्राइवेट परफेक्ट पार्ट का तो नहीं मिलता। परफेक्ट। और ये जीरो रेटेड भी नहीं है, तो जीरो रेटेड नहीं है तो ये कहाँ पे जाएगा। वो करना पड़ेगा। जीरो रेटेड नहीं है तो RDA 2 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कहाँ पे जा रहा है वो देखना पड़ेगा। नहीं जीरो रेटेड है तो फिर ये कहाँ पे जाता है, सिंपल सिंपल ही रखते हैं अपन इसको आई थिंक। फिर ये अगर ये जीरो रेटेड अच्छा नहीं वो है। 51, हाँ 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 हाँ। जो फिर वो फिफ्थ कितना है 51 से 54 और 55 के ऊपर वाले स्पेशल रेट में जाते हैं ना। हाँ बराबर 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 बराबर। है ना। 51 हम्म। से 54 वाले मेन पूल में जाते हैं। और सेकेंड परफेक्ट हैंड वाले परफेक्ट। भी शायद मेन पूल में जाते हैं। अच्छा इस पे। ये उल्टा बोल रहा हूँ। नहीं नहीं ये सेकेंड हैंड सेकेंड हैंड वाले कहाँ पे जाते सेकेंड हैं पता हैंड नहीं। गाड़ियों का पता नहीं, देख सेकेंड हैंड गाड़ियों का पता नहीं। क्योंकि गाड़ियों का ऐसा है, जो सेकेंड हैंड हैंड बन जाती है ना उनका बेसिकली कॉस्ट, मतलब उनका एमिशन रेट ज्यादा ही होता है, ऐसा सीन है, इसलिए वो स्पेशल रेट पूल में जा सकती है। अब ये देख, विजिटिंग potential customers, a tax deduction is available for qualifying expenditure incurred during the 7 years prior to commencing the trade. For the purpose of this rule, qualifying expenditure is the expenditure which would normally be allowable when calculating the tax adjusted trading profits of a business. For example, it should be recognized that travel expenditure would have to be incurred wholly and exclusively for the purposes of the trade in order to be allowable, and no deduction would be available for any amounts incurred in respect of entertaining the customers. The total of the qualifying pre-trading expenditure will be treated as having been incurred on 1st of April 2026 on the first day of trading. अच्छा। ओके। तो जो तू बोल रहा था कि प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर का, आई थिंक वही है, 7 साल के हम्म। अंदर इसको कंसिडर करना है। 7 साल के अंदर अंदर अगर वो पोटेंशियल हम्म। कस्टमर कस्टमर बन गया तो फिर अपन वो ले सकते हैं। क्योंकि नया बिजनेस है ना हम्म। उसका बराबर वैलिड है फिर 7 साल हाँ के अंदर आ जाएगा। बराबर। लेकिन मैंने ऐसे एक सम किया था जहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर्स को हम लोग नहीं इंक्लूड करते थे रे, हाँ एक्सपेंडिचर। नहीं इंक्लूड करते हैं बट यहाँ पे पूछा है कि उसके आगे के मतलब इम्प्लीकेशंस आगे वो कब अच्छा ओके। एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकता है। अच्छा ओके ठीक है ठीक है ठीक है, समझा समझा समझा। यस। फाइन गॉट इट। कहता है ये यैक बिल्डिंग, ये तो बराबर बोला, 3% वाला एस बी ए और ये वाला 75% ए आई ए मिलेगा। नाइस, ये पूरा सही था। और ये देख, ये जैसा तूने बोला, अगर ये if CO2 emission does not exceed 50 gram then 18% or otherwise 6%, ठीक है, JQ will obtain tax deduction equal to the amount written off multiplied by 65% of the business purposes, जैसा तूने बोला। तो सही थे, ठीक है। हम्म। आगे बढ़ते हैं। Alternative plan for the use of the YAC building. When carrying out this task 3, you should assume that
the alternative plan for the use of Yak building is followed. I can confirm that supplies to be made by Jack's unincorporated business will be wholly standard rated for VAT purpose. However, due to application of capital goods scheme, Jack's ability to recover the full of 67,000 of the input tax over the life of the building will be restricted unless he opts to tax the building. Calculate the maximum amount of additional input VAT which Jack could recover if he were to elect to opt to tax the Yak building on 1st of April 26. Your calculation should include the years in which the input tax would be recovered. एक second. हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एडिशनल इनपुट वैट विच अच्छा एडिशनल है ठीक है ना विच वुड रिकवर if he were to elect to opt the tax building on 1st of April 26. Your calculation should indicate the years in which input tax would be recovered. ठीक है. Alternative plan for the use of the yak. I am considering an alternative plan for use of the yak building as follows. For the period of 4 years from 1st of April 26, I would use 70% of the yak building for carrying on my unincorporated business. I would rent out the remaining of the building from that date. By the end of the 4 year period, my business should have grown sufficiently to require the use of the whole building. I am also considering selling the whole of my shareholding. वो जाने दे इधर तक ही. मेरे को पता है क्या लग रहा है इसमें. एक तो ये हो सकता है कि भाई जो तुम्हारा बिल्डिंग था वो तुमने पहले खरीदा बराबर है. मैं कहीं भी जाऊंगा तो मेरे को बता देना ठीक है. अभी मैंने खरीदा 3,35,000 का बराबर है. अब मैंने उसके ऊपर 20% का वैट भरा तो मैंने कितना भरा मतलब एक तरीके से मैंने 77,000 भरा रहेगा क्या. नहीं 67,000 है ना. एक मिनट रुक जा थ्री देख लिया लाख है अपन ने। तो अपने 67,000 का वैट भरा ठीक है. अपने 67,000 का वैट पूरा हम्म। का पूरा नहीं सॉरी अपन ने परचेज किया है तो अपन ने 67,500 का वैट क्लेम किया. इनपुट इनपुट वैट लिया है। बराबर है. हम्म। लेकिन जब काम करने की बारी आई तो हमने काम खाली 70% ऑफ द बिल्डिंग पे कर रहे थे हम लोग बराबर है. तो बराबर। हमारे तो वैसे 70% पे अगर हम लोग काम कर रहे थे तो हमने 30% पे काम नहीं किया बेसिकली. तो एक्चुअली कैसे हो गया. वी हम्म। फर्स्ट क्लेम्ड एक मिनट मैंने B2 के लिए कुछ किया ही नहीं ना. हाँ B3 है ये. वी फर्स्ट क्लेम्ड द एंटायर वैट ऑन द परचेज of the building which was fuck 3,35,000 into 67 इंटू 0.2। 0.2 ठीक है 67,000. However, for 4 years we claimed this. However, for 4 years we did not use the 100% of the building for business use. बराबर है. उसमें का 30% वॉज फॉर प्राइवेट यूज. तो मुझे पता है क्या लग रहा है. हाँ। यस। 67,000 का 4/10 पीरियड. पीरियड तो वैसे ऐसे लिख रहा हूँ पता नहीं क्या. इज इक्वल टू और फिर इस 100 पे। हाँ। नहीं, माइनस 100 नहीं, 100 नहीं। तो मेरे को 70 - 100 लग रहा है। नेगेटिव. हाँ हाँ। ओके. हाँ मैं समझा तू क्या बोलना चाहता है. नेगेटिव इन द सेंस कि ओके इतना. इन बट द यार सेंस अपने को
अच्छा। क्योंकि वो लोग ने बोला पहले 4 साल तक 70% अपन यूज कर रहे थे, और उसके बाद बिजनेस एक्सपेंशन हुआ है, मतलब थोड़ा बिजनेस बढ़ा है, और अपन फिर 70 से अभी 100% यूज कर रहे हैं। ठीक है तो ठीक है पहले अपन ने जो 100% क्लेम किया है, वो अभी 70% ही क्लेम करना चाहिए था बेसिकली। ठीक है, समझा। तो दिस इनटू दिस इनटू दिस तो होता है 8040। इतना हमने 8040 एक्स्ट्रा क्लेम किया था, जबकि वो हमारे बिजनेस यूज के लिए था ही नहीं। तो अभी ये लोग नीचे क्या बोला, कैलकुलेट द बराबर। maximum amount of additional input VAT which Jake could recover if he were to elect opt to tax। हाँ ये देख बराबर, ये देख अभी हाँ, अभी हमें अभी कैलकुलेट अपन करना है टेस्ट मैक्सिमम। करते हैं। हाँ, calculate maximum amount of additional input VAT which Jake could recover if he were to elect to opt to tax the building on 1st of April 2026। Your calculation should indicate years in which input tax would be recovered। तो इनकम टैक्स which would be recovered ओके। are the years after the first 4 years ना। आफ्टर, हाँ बराबर, तो आफ्टर ये फर्स्ट एट 4 ईयर जीरो फोर मतलब जीरो फर्स्ट पे 20। हम्म तो मुझे एट बात जीरो बताया फोर नहीं। जीरो को शायद अपने को रीपे करना पड़ेगा ना HMRC को, एग्जैक्टली exactly, मैं क्योंकि वही अपन ने बोल पहले रहा हूँ, ये पूरा अपने लिया को था। रीपे करना पड़ेगा, ये अपना लॉस्ट हो गया ना, मतलब एक तरीके से। यस, यस, यस। मुझे भी वही लग रहा है कि ये लॉस्ट हो गया है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अभी एचएमआरसी एंड अब अपने देन, को पे करेगा कि भाई 100% तुमने, नहीं ना, कि अब तुम 100% पे आ रहे हो। नहीं आई डोंट थिंक। नहीं ना। क्या पता यार, अभी अभी क्योंकि ना देख, अभी जितना मेरे को याद आ रहा है ना, अभी भले हम्म से दो कंडीशंस अपने को दे रहे थे ना, कि पहले तू 100% यूज कर रहा था, उसके बाद अभी तू 30% यूज कर रहा है, एंड देन अभी तू हम्म 30% यूज कर रहा था, उसके बाद तुझे सेल ऑफ ही कर दिया है, और वो भी सब ये सब चीजें 10 साल के अंदर हो रही है। तो भी अपन हम्म सीधा 100 - 0 ही करते थे। वी डायरेक्टली टू जंप ऑन दी एंड, मतलब एंड सिचुएशन तेरा क्या हो रहा है, तूने 0 ही कर दिया ना, और वो भी 10 साल के अंदर हो गया। तो अभी हम्म इसका भी वैसे ही करना है क्या, कि तू 70 से अभी फिर डायरेक्ट 100%, मतलब इसलिए मैंने वो वैसा बोला कि 70 - 100 होगा, वो सोच के समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूरा ही उल्टा हो ठीक है गया। एवरी टाइम ठीक ऐसे है नहीं ठीक है। आता है। आजा आजा। ऑल्टरनेटिव प्लान तो ये देख, हमने 70% हमारा 8040 एडिशनल अमाउंट रिकवर्ड ड्यू टू ऑप्टिंग टू टैक्स। ड्यू टू ऑप्टिंग टू हाँ, टैक्स। तो अपने को भी एट एट जीरो जीरो फोर फोर जीरो के जीरो ठीक बराबर है। ही आया है। बट यार ये अपना प्रेजेंटेशन नो, इतना ऐसा बड़ा नहीं है जो हाँ वो उन्होंने पढ़ ना किया है। जरा क्या दिया है ऊपर से। Under the अंडर द alternative plan, ऑल्टरनेटिव maximum amount of additional input VAT which Jake would recover if he were to elect to opt to tax the yak building would be calculated as follows। सबसे पहली बात तो हमने इसका 70% ईयर 6 to 7, ठीक है। तो अभी ये लोग ने क्या दिया, ईच ईयर टैक्स 5 to 6 में क्या हो रहा है, ईयर्स प्लान। एंडिंग 31st of March 2036। ठीक है, ईच ईयर 67,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 30%, 100 - 70%, 2010। टोटल इन 6 ईयर्स तेरे को 12,060 आता है। तो टोटल इनपुट वैट रिकवर्ड जो है तेरा तेरा 58,960 का है। और टोटल ऑप्ट, हाँ तूने लिया था 100% का, तो तेरे को 67,000 तूने लिया था। तो एडिशनल इनपुट, एडिशनल अमाउंट रिकवर्ड ड्यू टू ऑप्टिंग टू टैक्स। हाँ, तो ये देखो पे बैक करना है। ऑप्टिंग टू टैक्स द बिल्डिंग वुड मेक एनी सप्लाईज ऑफ द बिल्डिंग सच एज रेंटल स्टैंडर्ड रेट सप्लाईज, देयरफॉर टैक्सेबल यूज ऑफ द बिल्डिंग वुड बी 100% थ्रू आउट द 10 ईयर कैपिटल। बराबर है, तो अपन ने जो किया वो बराबर ही किया, बट इन्होंने इतना क्यों कैलकुलेट किया उसके लिए। तो ये देख, ये लोग क्या बोलना चाहते हैं, इतना अमाउंट तूने रिकवर किया ऑप्टिंग टू टैक्स की वजह से, मतलब इतना अमाउंट तूने रिकवर किया हुआ था 8040 का। तो अब तेरे को इस चीज के ऊपर खाली टैक्स हाँ, भरना पड़ेगा, मतलब वापस यू हैव टू पेड बैक टू द एचएमआरसी बिकॉज यू क्लेम दिस अमाउंट प्रीवियसली। ऐसा पहले क्लेम किया था इनका बराबर। वर्किंग ऐसा क्यों है पता नहीं, मतलब इन्होंने वर्किंग में एज गुड एज 100 - 70 किया हुआ है, तो अगर वैसे देखेगा तो ये ये देखना। लोग ने एक्चुअली दो दो कैलकुलेशंस किए हैं। एक तो उसने अगर टैक्स के वैट के लिए ऑप्शन ही नहीं लिया रहता,
तो वो लोग बोल रहे हैं तू फर्स्ट ईयर में सिर्फ 70% ऑफ द ये इनपुट इनपुट वैट क्लेम करेगा, क्योंकि तूने सिर्फ 70% ही हाँ, यूज किया बिजनेस पर्पज के लिए, ये बोल रहा हूँ मैं। बराबर फिर बाद में बराबर। ईयर्स 5 to 10 में उसने 6th ईयर एंडिंग 31 मार्च तब तो बेच दिया बिल्डिंग, बराबर। हम्म। तो 5, 5 और 6, नहीं 4, 5, 6, नहीं 4 नहीं आएगा, 5 और 6। तो यहाँ पे ये मेरे को समझा, यहाँ तक मेरे को समझा, ये क्या किया टोटल इन 6 इयर्स। अरे 6 साल ना, तूने ये वैट तेरा तेरा 6 साल का बनता है बेसिकली। ये जो तेरा इनपुट वैट है ना, 12060, ये तेरा बनता है। हाँ यू अच्छा, ये यू ये डिजर्व दिस ये वैट। एवरी ईयर का आ रहा है। हाँ हाँ, ये एवरी ईयर एवरी का आ ईयर रहा आ है रहा ना। है, ऐसा है। हाँ हाँ हाँ। ओके, और अगर तूने टैक्स के लिए ऑफ किया रहता तो वो बोल रहे कि कोई भी पर्पस के लिए यूज किया है तो पूरा का पूरा तो क्लेम कर सकता है, ऐसा आई गेस। सिक्सटी बराबर। सेवन थाउजेंड एंड देन इसका डिफरेंस निकाला। ठीक है, तो फिर अपन ने तो डायरेक्ट ये कैलकुलेशन किया था। भाई ओके। ठीक है ना भाई, अपना ने क्या कुछ गलत तो नहीं किया वैसे भी। बराबर ही आया आंसर तो, है हम्म। ना। चल, आगे बढ़ते हैं। चल भाई, 8, 8 और 6, 22 में से अपने अपन ने इतना तो किया है कि 15-16 तक मिल जाए भाई, इतना तो अच्छा किया पंद्रह है। सोलह मिल जाए, हाँ ना भाई। यस। अभी आता है ये लास्ट। 1 मिनट। एच के आ गया 8 और 8, भाई। 16, 16 + 6, 22, 22, 22 + 13, 35। 22 + 13 35। 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। अरे ऊपर ऊपर ऊपर, तो फर्स्ट वाला हाँ, मिस कर ऊपर रहा का है, पार्ट 5 था, मार्क्स ओके का। ओके। हाँ, तो अपन ने ऊपर का पार्ट भी हाँ। अच्छे से सॉल्व किया, मतलब 20 तो मिल सकते हैं भाई यहाँ पे, इसको सॉल्व करने से पहले। चल। हम्म। Sale of shares in Paul Limited. On the assumption that Jake sells the Paul Limited shares in the tax year 26-27 for 4,70,000, and that his aunt dies between now, which is 1st of January 26 and 31st of December 2028, that is within 7 years of the potential exempt transfer. Explain without carrying out any calculations Jake's potential liability to inheritance tax at the time. Explain without carrying out any calculations Jake's potential liability to inheritance tax at the time of sale of shares on the subsequent death of his aunt. क्या बिच है भाई, कैलकुलेशन क्यों नहीं करने दे रहे? मुझे लगता है ऊपर का एक बार पढ़ लेते हैं, फिर शायद ज्यादा क्लैरिटी आएगा। हम्म। Schedule पढ़ from भाई। Jake dated 1st of January 26. Details of the possible sale of all my shares in Paul Limited. This sale would not take place until 2026-27. I would sell the shares for their full market value, which I would expect to be 4,70,000. Okay, इन्होंने अपने सारे के सारे shares दे रहा है। Paul Limited is an unquoted manufacturing company. I have never been an employee of Paul Limited and will not become one in the future. इतनी खराब है भाई Paul company. Acquisition of the shares from my aunt. On 1st of May 17, my aunt purchased 6,000 shares in Paul Limited for 2,95,000. On 1st of October 25, aunt gave all of her shares to me at the time that the market value was 4,20,000. ठीक है, aunt ने मेरे को 4,20,000 का लाइफ टाइम ट्रांसफर किया था। My aunt and I made a joint election for the purpose of gift holdover relief. This resulted in 1,12,500 of the gain being held over. Okay. For the purposes of inheritance, I have advised, I was advised, and you have subsequently confirmed that this gift qualified for 100% rate of BPR at the time because my aunt had owned the shares for more than 2 years and 12% of the value of the Paul Limited assets consisted of accepted assets. ये तो मुझे पता ही नहीं है। In the tax year 2024, my aunt also made a gift of an investment property to my sister. This incurred on 1st of September 2023. The property was valued at 3,60,000. ठीक है। देख, उसने सिस्टर को 1 सितंबर 2023 को दिया था इस मार्केट वैल्यू पे। तो सिस्टर ने अपना पूरा नील रेट बैंड बेसिकली
दोनों के दोनों ट्रांसफर्स लाइफ टाइम में पीईटी थे, सो देयर वाज नो एक्चुअल पेएबल। ठीक है, हम्म। हाउएवर ऑन 1 यस। अक्टूबर 23 बिजनेस प्रॉपर्टी रिलीफ वाज अवेलेबल, और इसको पूरा का पूरा अपना बिजनेस प्रॉपर्टी रिलीफ मिला रहेगा 4,20,000 पे, पूरा का पूरा इसका नील गया रहेगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू बराबर। अज्यूम दैट आंट डाइड विदाउट कैरिंग आउट एनी कैलकुलेशन। हमको अज्यूम करना है बिटवीन 1 जनवरी 26 एंड 31 दिसंबर 28। सी, अगर उसकी आंट 1 जनवरी 26 को मरती है, तो शी इज डाइंग इन द टैक्स ईयर 26 25 26। ठीक है, 27। सुन तो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर उसकी आंट आज क्या है ये 1 जनवरी 26 को मरती है, ठीक है, तो क्या होगा, जेक कब बेच रहा है अपनी शेयर्स, कब बेच रहा है? आई वुड सेल द शेयर्स एट द मार्केट वैल्यू। The sale would not take place until the tax year 26-27, they are saying. ठीक है, and I would sell off the shares हम्म। for 4,70,000. So he is not selling the shares in the tax year 25-26 when his aunt is dying on 1 January 26, तो उसको फिर भी पूरा का पूरा बीपीआर मिलेगा। He is good to go. बीपीआर मिलेगा, बराबर। यस। Now comes the question, when is he selling off the shares? ठीक है, अभी if he is selling off the shares before his aunt is dying, then no BPR will be available, बराबर। and और entire आंट 4 मरने lakh के 20। बाद भी, आंट मरने आंट के मरी, बाद भी अगर 2 साल के 2 साल तक उसने होल्ड किया तो भी बीपीआर मिल सकता है ना, उसके बाद भी अगर डिस्पोज ऑफ किया तो। उसके बाद डिस्पोज ऑफ किया तो बीपीआर मिलेगा, उसके पहले किया तो नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहा है? नहीं मिलेगा। यस। ओके ओके ओके। सो इफ हिज aunt इज डाइंग बिफोर बी, मतलब बिफोर ही सेलिंग ऑफ द शेयर्स, यार कैसे बोले अभी इस चीज को इंश्योर, इफ ही सेलिंग ऑफ द शेयर्स आफ्टर हिज aunt is dying, then he should wait for 2 years after the death so हाँ। that BPR यस। could be claimed। ये चीज मेरे को पता नहीं थी। और ये सब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर वो 31 दिसंबर 28 को मरती है, तो इस बंदे ने तो अपने शेयर्स टैक्स ईयर 26-27 में बेच दिए होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो अभी इसको लाइफ टाइम ट्रांसफर माना जाएगा, और ये 31 दिसंबर 28 को मर रही है, जबकि इसको ट्रांसफर किया था 1 अक्टूबर 23 को। तो इस चीज के ऊपर अक्टूबर 3 अभी को। टैपर रिलीफ मिलेगा। टैपर रिलीफ मिलेगा 5 to 6 years का, विच इज 60%। उसके अगर 1 साल पहले तो 40 एंड वो सब अभी अपन बताते जाएंगे। ठीक है, हम्म। जनवरी 2026 ना। क्या? अरे इसने दो मर तीन रही कब है इसने बोला है? बोला है कि, वो बोल रहा है, उसने ऐसा डेट दिया ही नहीं, इसलिए ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है। देखना, 1 जनवरी 26 हम्म। एंड 31 ऑफ डिसम्बर 28, ये कभी भी मर सकती है बोला है, इन दोनों डेट्स के बीच में। तो लेकिन जैन ये बंदा 2026 में मरी तो टॉपर मिल ही नहीं रहा है। उसके बाद कभी मर रही तो है तो अपन टैपर बोल नहीं मिल सकते हैं रहा कि है। 3 साल। अरे टैपर का हाँ, पॉइंट ही तीन नहीं से आएगा, चार का मिलेगा, क्योंकि 4 से इसको 5। पूरा का पूरा बीपीआर मिल रहा है ना, Jan 26 को मर बीपीआर में गई जा तो, रहा है, क्योंकि राइट। ये सेल तो राइट। 26-27 में कर रहा है। हम्म। ऐसा सीन है। फिर अगर ये 27-28 में मरती है, या फिर उसके बाद मरती है, तो भी इसको बीपीआर तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। सुन ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। और तू बोल रहा है कि 2 साल तक होल्ड करना है, व्हाट इफ दिस पर्सन सेल्स द एसेट इन द टैक्स ईयर 26-27 ऑन, से कोई भी गिवन डेट ले ले, लेट्स से 30th of June 2026। अब इसकी आंट तो मर रही है थर्टी हम्म। फर्स्ट ऑफ डिसम्बर 28 को। 2 साल का पीरियड हो गया, अरे हाँ, नहीं नहीं, उसके मरने के बाद तू बोला ना 2 साल, सॉरी सॉरी। ठीक है,
वो वाला पॉइंट आ मरने ही के नहीं बाद सकता। शायद 2 साल का सीन है ना, ठीक है क्योंकि ठीक है, वो आ भले जाता है। 2 साल का पीरियड ये करके दे दे, मतलब वो अभी जब से उसने उसके आंट ने 2 साल होल्ड किया है और उसके बाद दिया है, तो भी शायद उसको इनहेरिट किया है ना, तो उसको भी 2 साल होल्ड करना पड़ता है शायद, जो डोनी है जिसको रिसीव हो रहा है। समझा 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 समझा, मतलब बीपीओ आई के तेरे गेस को है, भी मेरे को होल्ड याद नहीं पीरियड आ है। रहा है। नहीं तो शायद बराबर बोल हाँ। रहा है। ये देख, एट द टाइम ऑफ सेल द सेल रिवील फुल मार्केट वैल्यू सच दैट देयर विल बी नो इमीडिएट आईएचटी implications, लाइफ टाइम के लिए बोल रहे हैं लोग। डेथ के टाइम पे ये देख, इफ जेक डज नॉट ओन द शेयर एट द टाइम ऑफ आर्न्स डेथ, देन नो बीपीआर विल बी अवेलेबल, विल बी सब्जेक्ट टू आईएचटी। इफ जेक डज ओन द शेयर एट द टाइम ऑफ आर्न्स डेथ, तो क्या हो जाएगा, 100% ऑफ बीपीआर विल बी अवेलेबल। However, the relief will be restricted to the expected assets. So expected as sorry, accepted assets, accepted assets कितने थे यहाँ पे, कहाँ गए वो इनके नहीं, accepted assets। 2 साल का बोला ही नहीं है उन्होंने कुछ। अब वो आएगा, रुक जा। अभी ये देखो, उन्होंने क्या बोला, 12% ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट्स कंसिस्टेड ऑफ एक्सेप्टेड एसेट्स, तो बाकी का जो 88% है उसके ऊपर तेरे को बीपीआर मिलेगा, ये बोल रहे हैं, ये देख एक्सेप्टेड एसेट्स का सीन। ओके ओके। नो एईए, एईए तो नहीं है। फिर आईएसटी के लिए देख, ये लोग क्या बोल रहे हैं, 20% टाइपर रिलीव डज नॉट डाई अंटिल 1 अक्टूबर 26, एंड देन उन्होंने 20% रिलीव बढ़ाते गए हैं वो हर साल। ठीक है। तो ये आंसर का बराबर। थ्योरी जो है ना, वो अपन एग्जाम मतलब वो सबसे लास्ट में लिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि इसके वजह को, अभी ये हाँ तो इन्होंने यहाँ पे सामने सामने आंसर दिया तो पता है, बट वहां पे थोड़ी पता रहेगा ऐसा। ठीक है। भाई, एक बार अब्दुल को पूछना डीपीआर का, मतलब होल्डिंग पीरियड का अरे तू सीन, पूछ लेना, अगर तू तेरे पूछ को ले। तेरे डोनर ने, तू सीधा कॉल करता है यार, वो सीधा। अगर तेरे को डोनर ने दिया है तो एकदम मैं अच्छा, कैलकुलेट द चार्जेबल, यार बाद में भेज दे। कैलकुलेट द चार्जेबल गेन रिजल्टिंग फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ सेल फ्रॉम बिफोर द डिडक्शन ऑफ एनी अवेलेबल रिलीफ एंड एक्सप्लेन वेदर और नॉट द फॉलोइंग रिलीफ शुड बी अवेलेबल। बीएडीआर एंड रोल ओवर। बीएडीआर के लिए तेरे को, तूने कभी एम्प्लॉय तो रहा नहीं है, और तू 2 साल तक होल्ड तो बिंदास कर रहा है, लेकिन तू एम्प्लॉय कभी रहा नहीं है, तो बीएडीआर तो नहीं मिलेगा। अब आता है रोल ओवर रिलीफ। रोल ओवर रिलीफ के लिए वो तेरा बिजनेस एसेट होना चाहिए, और वो बिजनेस एसेट तू किसी और बिजनेस एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। बराबर। तो बिजनेस एसेट था नहीं, एक सेकंड। रोल ओवर रिलीफ भी नहीं मिलना चाहिए, है ना। क्या बोल रहे हैं ये लोग? पढ़ ले पढ़ ले। The assumption that the value of the target is resulting from the sale before deduction of any available reliefs, and explain whether or not the following reliefs would be available: rider and rollover. ओके, और अभी ऊपर क्या बोला है? ऊपर बोला है तू एम्प्लॉय नहीं है फर्म का। राइडर तो गया, हाँ। आई हैव नेवर बीन एम्प्लॉय। और एंड रोल ओवर का क्या, बिजनेस के लिए रहना चाहिए ना, बिजनेस के लिए तो फिर नहीं होगा। बराबर। अभी लास्ट में है कि कोई और, एक्सप्लेन द रिलीफ विच वुड बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आईएचटी पेएबल फॉलोइंग द डेथ ऑफ जेक सांड। कौन सा रिलीफ अवेलेबल हो सकता है फॉलोइंग द डेथ ऑफ टाइपर रिलीफ, वो एक है। वो सबसे पेपर फालतू चीज है, रिलीफ है। लेकिन अगर शेयर्स का वैल्यू नीचे गिर जाता है तो फिर तेरे को फॉल इन वैल्यू रिलीफ मिलता है, अगर बढ़ जाता है ऑल इन वैल्यू। तो तेरे को सेम रखने यस। का मौका मिलता है। उसको कुछ ऐसा रिलीफ का नाम नहीं है ना, वो नहीं, तो रिलीफ एक तो नहीं है प्रोविजन ना। है ऐसे ही। अगर 2 डेथ बैक टू बैक हो जाती है तो फिर क्विक सक्सेशन रिलीफ मिलता है, तो किसी और को भी इसको मारना पड़ेगा फिर। हाँ अगर ये भी, हाँ तो यही मरेगा ना, ये चौंकिया, क्या है इसका नाम? नहीं भाई, जेक। फैमिली में कोई मरना चाहिए दूसरा, जब वो जिससे तेरे को गिफ्ट में बेसिकली, अगर तेरे दादाजी मर गए
और उसके बाद उन्होंने तेरी चाची को दिया था और चाची ने मैं फिर तेरे को दिया था, तो फिर तेरे दादाजी और हाँ चाची हाँ दोनों हाँ मरने हाँ। चाहिए बैक टू बैक, ऐसा है। ये यही मर गया यस, तो थोड़ी मैं मिलेगा। ऐसा बोल रहा था कि हाँ। नहीं, मैं बोल रहा था आंटी ने जेक को दिया और जेक मर गया तो जेक उसके सन को देगा, तो भी क्विक क्विक सक्सेशन रिलीफ से सन को मिलेगा, ऐसा। हम्म। अभी देख वो ऐसा कोई रिलीफ तो नहीं है, बट कैसा सीन है पता है क्या? उन्होंने गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ कुछ तो किया हुआ था, बराबर है। तो एक पॉइंट है यहाँ पे, गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ। हाँ तो मतलब ये लोग ने चार्जेबल, क्योंकि जब ये एसेट बेच रहा होगा अपने शेयर्स, इसको गिफ्ट होल्डर रिलीफ क्लेम करना पड़ रहा होगा, मतलब इसको अपना बेस कॉस्ट कम करके इसके ऊपर ज्यादा टैक्स भरना पड़ रहा होगा। तो इस पे जो सीजीटी भरा हुआ है, वो सीजीटी का इसको इन 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 इनहेरिटेंस हाँ। टैक्स में वो मिलेगा क्लेम कि भाई तू अपनी सीजीटी को माइनस कर ले, या फिर वाइसे वर्सा, बराबर जहां पर भी बराबर। तूने को, हाँ ऐसा, ठीक है ना। चल, डबल टैक्स नहीं भरना चाहिए वैसा। अब ये यस। देख इन्होंने कैसे दिया है, सीजीटी इम्प्लीकेशन में कुछ तो दिया है। 4,70,000 का सेल प्रोसीड्स, मार्केट वैल्यू 420 का था, ये देख। तो मैंने चार्जेबल गेन 1,69,200। अवेलेबिलिटी ऑफ ये बीएडीआर विल नॉट बी अवेलेबल बिकॉज जेक इज नॉट एन एम्प्लॉय। रोल ओवर रिलीफ विल नॉट बी अवेलेबल बिकॉज शेयर्स आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट फॉर द पर्पस ऑफ रोल ओवर। Relief will be given against the chargeable gain in respect of any IHT payable following death of Jake Sand. This is because gift holdover relief was claimed in respect of the gift. बराबर है। नाइस। गुड।